Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will discuss the question answers from chapter 2, A School with a Difference. This video is part 3 of chapter 2. In our previous videos in part 1 and in part 2, we had discussed the whole chapter. So today we will discuss the question answers of chapter 2, A School with a Difference. So now let's start our class. In this chapter, we have learned about a school, its teaching methods, its curriculum, and the style of teaching. This lesson gives us a very important message that how doing simple things can make learning more interesting and easier. Learning while doing is the best way to learn different things. इस चैप्टर में जो हमने स्कूल के बारे में पढ़ा था, उस स्कूल का जो मेन एम था वो ये था कि हम बच्चों को वहाँ पे ह्यूमैनिटी सिखाएं, थॉटफुलनेस सिखाएं एंड उनको एक बेटर सिटीज़न बनाएं लाइफ में. सो वी शुड बी काइंड टू अदर्स, वी शुड हैव कंपैशन, वी शुड बी क्रिएटिव. सो ये सारी चीज़ें उस स्कूल में सिखाया जाता था बच्चों को कि आप दूसरों के लिए काइंड रहें, उनको केयर शो करें एंड एक बेटर सिटीजन बने अपने कंट्री के लिए. सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. सो ऑन योर स्क्रीन you can see there are difficult words with their meaning. All the difficult words with their meaning you have to write in your fair literature copy. Now coming to the question answers. Answer these questions with reference to the context. Question number 1. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea that it was so awful to be blind. Awful means bad. Okay. So here, who is the speaker? That means who is saying these lines? The lines are, oh no, she exclaimed. That would be cheating. I had no idea that it was so awful to be blind. Awful means bad. Okay. So now who is the speaker? The speaker is one bandage girl. That means ये इंसिडेंट उस टाइम का है जब जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो उस बच्ची के पास जाते हैं, उस लड़की के पास जाते हैं जिसकी आइज़ कवर रहती है बैंडेज से. एंड उस टाइम जब वो उससे पूछते हैं कि आपको कैसा फील होता है, आप ब्लाइंड हो, क्या आप कभी कभी अपनी पट्टियों को हटा के, अपनी बैंडेज को हटा के क्या कभी आप पीप करते हो? दैट मीन्स क्या कभी आप पट्टियों को हटा के देखते हो? So here that time that girl is saying, oh no. The girl is saying, oh no. That means you never do this. वो कभी भी अपने आँखों की जो पट्टियाँ लगी हैं, बैंडेज लगे, उसको वो नहीं हटाती थी बिकॉज शी थिंक्स दैट विल बी चीटिंग, कि ऐसा वो करेगी देन वो चीटिंग करेगी. सो हियर हु इज़ द स्पीकर? द स्पीकर इज़ वन बैंडेज गर्ल. बी क्वेश्चन, वाई डज शी से इट वुड बी चीटिंग? नाउ why she is saying that it would be cheating? The answer is she says it would be cheating because it was her blind day. That means वो उसका blind day था, इसलिए उसने ऐसा कहा कि अगर मैं पट्टियाँ हटाऊंगी तो वो चीटिंग होगी बिकॉज इट्स हर ब्लाइंड डे. एंड ब्लाइंड डे पे आपको ब्लाइंड डे के जैसे ही बिहेव करना. एक जो बच्चा होता है जो ब्लाइंड होता है वो जो भी चीज़ें फेस करता है अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, अपनी डेली जो वो फेस करता है, सो वैसे आप फेस करो. सो आप वो तभी फील कर सकते हो जब आप ब्लाइंड की तरह बिहेव करोगे. क्वेश्चन नंबर सी, वाई डज द स्पीकर फील दैट बीइंग ब्लाइंड वॉज ऑफुल? सो हियर वाई द स्पीकर फील दैट बीइंग ब्लाइंड वॉज ऑफुल. यहाँ पे जो स्पीकर हैं उससे ऐसा क्यों फील होता है कि जो ब्लाइंड है वो काफ़ी बैड होते हैं? क्यों ऐसा फील होता है? The speaker feels that being blind was awful because you cannot see anything. So it's a very simple answer कि जब आप blind के जैसे behave करोगे so आपको इसलिए bad लगेगा, आपको ख़राब इसलिए feel होगा because you cannot see anything. आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं and आपके मन में हमेशा एक डर रहेगा कि आप चलते चलते आप कभी किसी चीज़ से ज़रूर टकरा जाओगे. So हमेशा आपके mind में एक fear रहता है. Question number 2. She replied, then there is something to my system after all. So now, who is saying these lines? So here, the speaker is Miss Beam. Miss Beam is the speaker. And who was the Miss Beam?
मिस बीम वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। जो चैप्टर में हमने स्कूल के बारे में पढ़ा है उस स्कूल की प्रिंसिपल थी मिस बीम। एंड शी इज सेइंग she replied, now there is something to my system after all। so ये मिस बीम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये कहती हैं नरेटर से कि अब आपको पता चला कि हमारे सिस्टम में कुछ तो डिफरेंट है। नाउ बी क्वेश्चन, व्हेन डिड शी से दिस? She said this when the narrator praised her teaching method। so मिस बीम ने ऐसा तब कहा जब नरेटर हैं, जब जो राइटर हैं इस चैप्टर के, जब उनकी टीचिंग मेथड्स को प्रेज करते हैं, देन मिस बीम ऐसा कहती हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय माय सिस्टम? The speaker means by my system is to impart education by making every child experience the struggle of the disabled person। That means my system, जो स्पीकर हैं उनका ये कहने का मतलब है माई सिस्टम से, माई सिस्टम मीन्स उनका जो स्कूल है, उनके जो एजुकेशन हैं उससे मतलब है। ओके, उनके जो एजुकेशन है वहाँ पे कौन सी एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को। ओके, सो उस स्कूल का मेन एम था कि बच्चों को एक्सपीरियंस कराया जाए, उनको पता चले कि एक जो नॉर्मल बच्चा नहीं होता है, जो एक डिसेबल बच्चे होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सो दे कम्स अंडर डिसेबल पर्सन। ओके, वो डिसेबल पर्सन होते हैं। सो वो अपने लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम तभी समझेंगे अगर हम वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, क्योंकि जब हम अपने आप महसूस करते हैं देन ओनली हम किसी और की परेशानियों को समझेंगे। सो स्कूल का मेन एम ये था कि हम बच्चों को समझाएं कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है, एक बैड लक क्या होता है, एंड इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर काइंडनेस आएगी, वो दूसरों की केयर करना सीखेंगे, उनके अंदर ह्यूमैनिटी की फीलिंग आएगी एंड वो बेटर सिटीजन बनेंगे लाइफ में। नाउ सी क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट हैड द राइटर थॉट मिस बीम वुड लुक लाइक? वॉज ही करेक्ट? दैट मीन्स जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, जैसा उन्होंने सोचा था मिस बीम के बारे में, सो वॉज ही करेक्ट? सो येस, द राइटर वॉज करेक्ट। So the answer is, the writer thought that Miss Beam would look like middle-aged, kindly and understanding woman. Her hair was beginning to turn grey and had a plump figure. Yes, the writer was correct. That means जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही सोचा था मिस बीम के बारे में, जैसा उन्होंने सोचा था मिस बीम वैसी ही थी। शी वॉज मिडिल एज, वो एक मिडिल एज की लेडी थी, वो बहुत काइंड थी, अंडरस्टैंडिंग लेडी थी, एंड उनके जो हेयर्स थे दे वर टर्निंग ग्रे, एंड उनके हेयर्स थे वो ग्रे कलर के हो रहे थे, एंड शी हैड अ प्लम्प फिगर। प्लम्प मीन्स शी वॉज फैट इन figure but in a good way। okay, so yes, the writer was correct। Question number 2, the real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness। What did Miss Beam mean by this? So the answer is, Miss Beam means to say that the real aim is to make children develop their sympathy and care for disabled and poor people. Thoughtfulness make them to collaborate, practice kindness and do things for others। That means उस स्कूल का जो मेन एम था वो ये था कि हम चिल्ड्रन के अंदर सिंपैथी की फीलिंग लाएं, वो केयर करें डिसेबल के लिए एंड पुअर्स के लिए भी कुछ अच्छा करें, उनको केयर शो करें, उनके लिए काइंडनेस रहें। Now question number 3, what kind of lessons did the children at the school have? The children at the school had lessons to understand the difficulties faced by the disabled person and develop the importance of humanity and citizenship। That means वहाँ पे जो बच्चे थे स्कूल के, उनको ये सिखाया जाता था कि वो कैसे अपने अंदर ह्यूमैनिटी की फीलिंग लाए, कैसे वो बेटर सिटीजन्स बने, एंड उनको ये भी सिखाया जाता था कि एक जो डिसेबल बच्चा होता है वो अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन ही लुक्ड डाउन फ्रॉम द विंडो? दैट मीन जो राइटर हैं जब वो विंडो के बाहर देखते हैं देन उनको क्या दिखाई देता है? So the answer is, the writer saw a large garden. He can see a large garden. He saw a large garden.
playground, a lot of jolly children and a girl with a crutch. That means जैसे ही नरेटर्स विंडो के बाहर देखते हैं देन उनको एक लार्ज गार्डन दिखाई देता है, प्लेग्राउंड दिखाई देता है, ढेर सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो बहुत खुश होते हैं एंड वो खेलते रहते हैं, एंड अ गर्ल विथ अ क्रच, एंड वहाँ पे उनको एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथों में क्रंच रहता है। क्रंच एक लॉन्ग स्टिक होती है जिसे आप पकड़ के वॉक करते हो, दैट मीन्स बैसाखी। ओके, सो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस लड़की के पैर में कोई इंजरी हो, सो इसीलिए वो उस क्रंच को लेके चलती हुई दिखाई देती है नरेटर को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द चिल्ड्रन इन मिस बीम स्कूल हैव a lame day, a deaf day, maimed day, a dumb day and a blind day. So what was the reason? क्यों मिस बीम के स्कूल में ऐसे डे होते थे? फॉर एग्जाम्पल लेम डे वहाँ क्यों होता था, डेफ डे क्यों होता था, मेम डे क्यों होता था, एंड डम डे एंड अ ब्लाइंड डे। दैट मीन्स जैसे आपके स्कूल में होता है स्पोर्ट्स डे में आप क्या करते हो, स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल उस स्कूल में मिस बीम के स्कूल में लेम डे होता था। लेम डे में बच्चे अपने आप को ऐसा बिहेव करेंगे कि वो वॉक नहीं कर सकते हैं, दे आर अनएबल टू वॉक। ओके, सो दे कम्स अंडर लेम उनको कहते हैं जो सही तरीके से वॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि मे बी उनके पैरों में कोई इंजरी हो। डेफ डे का मतलब है कि आप सुन नहीं सकते हैं। मेम डे का मतलब है आप एक हैंडीकैप्ड हैं, एंड डम डे का मतलब है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। ओके, सो ऐसे डे क्यों होते थे, ताकि बच्चों को समझ में आए कि एक फिजिकली जो डिसेबल पर्सन है, फिजिकली डिसेबल जो बच्चा है वो अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करता है, वो आप तभी समझेंगे जब आप ये सारी चीज़ें खुद पे ऑब्जर्व करोगे। ओके, सो इसलिए वहाँ पे ये सारे दिन होते थे। Now question number 6, how did the girl with the writer know that the girl walking with Miss Beam was Millie? That means कैसे पता चलता है उस लड़की को जो राइटर के साथ रहती है कि जो लड़की वॉक कर रही है मिस बीम के साथ वो मिली है। So the answer is the girl with the writer knew that the girl walking with Miss Beam was Millie by her blue cotton skirt and pink blouse. That means जो लड़की रहती है the girl with the writer, जो लड़की रहती है राइटर के साथ, उसने मिली को उनके कपड़ों से ऑब्जर्व किया। जैसे ही राइटर ने उनको बताया कि आपकी एक फ्रेंड जो मुझे दिखाई दे रही है उसने ये ड्रेस पहना है, सो उस ड्रेस के बारे में सुन के आराम से उस लड़की ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ वो लड़की मिली है। सो बस उसने उनके जो ड्रेस के उनके बारे में बस सुना, दैट मीन्स उसके आइज कवर थे डिपेंडे से, बट उसने काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द राइटर रियलाइज व्हेन ही वॉज वॉकिंग विद द गर्ल ऑन हर ब्लाइंड डे? सो यहाँ पे राइटर को क्या रियलाइज होता है जब वो एक लड़की के साथ वॉक करते हैं जो कि ब्लाइंड डे अपना कर रही होती है। सो द आंसर इज द राइटर रियलाइज दैट द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग टू अनदर मेड हिम मोर इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें जब राइटर देखते हैं देन उनको ये समझ में आता है कि वो अभी और ज़्यादा उनके अंदर थॉटफुलनेस आ गई, वो 10 टाइम्स मोर अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं एंड वो ईज़िली अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई फॉर सम चिल्ड्रेन वॉज नॉट स्पीकिंग मोर डिफिकल्ट देन नॉट सीइंग? दैट मीन्स जो स्कूल में बच्चे थे उनको ऐसा क्यों लगता था कि जो स्पीकिंग है was not speaking more difficult than not seeing. That means जो speaking है वो ज़्यादा difficult होता है देखने से। That means अगर आपके मुंह कवर हैं आप बोल नहीं सकते हो, so जो बोलना नहीं होता है वो ज़्यादा difficult है देखने से। Okay, so the answer is some children found difficult on dumb day. That means जब आपका dumb day है, जब आप बोल नहीं सकते हैं, वो कुछ बच्चों को ज़्यादा difficult होता था blind day से, क्योंकि माउथ वॉज नॉट बैंडेज, क्योंकि जो आपके जो मुंह होते थे
उन पे आप बैंडेज नहीं लगा सकते। बैंडेज सिर्फ आपकी आइज़ पे लगती थी। सो ऑब्वियस अगर आपके आइज़ पे बैंडेज लगेंगे देन आप नहीं देखेंगे। बट अगर आपको बोलना नहीं है, आपका अगर डम डे है, आपको कुछ बोलना नहीं है, देन बैंडेज आपके मुंह पे नहीं लगेगा। देन आपको क्या कंट्रोल करना है? द चाइल्ड हैज़ टू एक्सरसाइज अ लॉट सेल्फ कंट्रोल। दैट मीन्स आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आपको नहीं बोलना है क्योंकि आपका आज डम डे है। Now moving to question number 9. Those that have been blind already are the best. Why does the girl make this statement about the helpers for the blind day? The girl makes this statement about the helpers because she can understand the fear of blind day and become best helper for others. That means यहाँ पे जो लड़की रहती है जिसकी आइज़ बैंडेज से कवर रहती है, वो इसलिए ऐसा कहती है बिकॉज उसे लगता है कि वो अपना ब्लाइंड डे कर रही है। अगर वो अपना ब्लाइंड डे कर रही है देन वो ईज़िली समझ सकती है कि एक ब्लाइंड पर्सन क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। सो ऑब्वियस है अगर वो नेक्स्ट टाइम जब हेल्पर बनेगी किसी का, मीन्स उस दिन अगर उसका वो ब्लाइंड डे नहीं रहेगा, जब वो किसी की हेल्पर बनेगी, दैट मीन्स जब किसी का ब्लाइंड डे होता है देन उस बच्चे को एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। सो उस लड़की ने कहा कि अगर मैंने देख लिया ब्लाइंड डे कैसा होता है, मैंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली, अगर अब किसी का ब्लाइंड डे का डे आएगा एंड मुझे हेल्पर का चांस मिलेगा बनने का, देन मैं बहुत अच्छी हेल्पर बनूंगी बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम व्हाट अ पर्सन इज़ फेसिंग व्हेन ही इज़ blind. So now we have completed this chapter. The question answers are done. Your homework for today is to write all the question answers in your fair literature copy. Thank you students. Have a nice day.